Hello dear aspirants. So welcome back. Huh? Game of normals, right? Chal. So as people who are regularly attending this concept talk, they know this is not only a game, but we are trying to address appropriately the demand of UPSC, be it the civil services, be it the forest services. So here we are tackling the things with one of the you can say tough topic for you, that is analytical geometry, but we are trying to make you feel that topic in very lucid manner through these concept talks. So today we are gonna talk about, suppose that I have this mathematical equation which you call at central conicoid. क्या बोलते हैं इसको? Central conicoid. So central conicoid के अंदर में suppose that we are interested in finding the equation of normal at some point, लेट्स से अल्फा बीटा गामा. ध्यान से देखना, मतलब आपको एटलीस्ट 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्टली इट विल बी सफिशिएंट फॉर मेनी मोर. फेयर? सो आराम से अगले 15-20 मिनट छोटा सा कॉन्सेप्ट टॉक होगा ये, लेकिन पूरा क्लियर पिक्चर देकर जाएगा नॉर्मल्स की स्टोरी का. ठीक है, चलो. एक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at some point alpha beta gamma on, let's say this is the central conicoid, so on 1. But very important picture, very crucial picture starts from here, where PYQs are also attached. Number of normals, क्या बोल रहे हैं? Number of normals from a point, कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, let's say FGH on 1. मेरी बात समझ में आई? नंबर ऑफ नॉर्मल्स, अब दूसरा पॉइंट उठाया, वहां से सेंट्रल कॉनिकॉइड के ऊपर नॉर्मल्स डालने हैं. तो कितने नॉर्मल डाले जा सकते हैं? कुछ लोगों को याद है 6 डाले जा सकते हैं. बोलूंगा दिखाओ तो फिर है सॉरी. वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, ध्यान से देखना, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड लोकस ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल्स. किसमें? फीट ऑफ नॉर्मल्स. लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. नॉर्मल्स, जो कि सेकंड में हमें नॉर्मल्स जो मिलेंगे, जिस पॉइंट पर सरफेस पे हम नॉर्मल डाल रहे हैं, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर, अब ये जो पॉइंट है इसका लोकस क्या होगा? क्योंकि 6 नॉर्मल्स आप कह रहे हैं मिलेंगे, अभी कह रहे हैं कैसे मिलेंगे वो देखने वाली बात है. तो वो लोकस क्या होगा? क्या वो कोन होगा? क्या वो कोन होगा? ठीक है. जो पॉइंट्स हैं वो क्यूबिक इक्वेशन पर लाई करेंगे क्या? पूरा का पूरा अगर आप ये सिनेरियो देखें तो मैंने इस स्लाइड के ऊपर, जिन लोगों ने भी कोचिंग भी कर रखी होगी, खुद से भी पढ़ा होगा, उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि मास्टर ने एक स्लाइड के ऊपर में सारी चीज़ों को मतलब प्रेजेंट कर दिया है. इफ़ यू टॉक अबाउट योर CSE or forest services regarding this normals wala part, nothing going beyond that. If you have this much conceptual clarity with you, you can sail through without any hesitation. Should we start now? Permitted? Chalo, let's start. So as we are talking the mathematics here behind the normals, normals cannot be thought of without tangents,
and tangents cannot be thought without the previous concept talk, game of tangent planes. So if you are new to this, please go through that previous talk as well, game of tangents, because I will be referring something here from there itself. Chalo, be on the board please everyone. So suppose that, dear fellows, this is the central conicoid, ax square plus by square plus cz square equals to 1. This is some point f, g, h from which we are drawing the perpendiculars, and the point on the surface is alpha, beta, gamma, so it must be satisfying the given surface as well. A alpha square plus b beta square plus c gamma square must be 1, right or not? अब ये एक नॉर्मल तो मैंने अभी देखा, लेकिन कितने पढ़ेंगे मेरा इंटरेस्ट इसमें है। क्लियर है अभी बात को? ध्यान से देखते रहना। अब सपोज दैट, देखिएगा ध्यान से, वी नो दैट इक्वेशन, और यहां पे आपको 3D में जो हम कॉन्सेप्ट टॉक कर रहे हैं पूरा मजा लेने का मौका मिलेगा। यहां पर देखिए, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at the point alpha, beta, gamma of the conicoid of 1, let's say दे ही देता हूं उसको नंबर 1। कैसे दिया जाता है प्यारे बच्चों? is a alpha x plus b beta y plus c gamma z equals to 1, right or not? यही तो होता है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, बचपन में मैंने आपको बताया था प्लेन वाले कॉन्सेप्ट टॉक में बताया था, सिंस DRS ऑफ अ प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल्स टू 0 आर द कोफिशिएंट ऑफ X by Z हियर, ठीक है? A1 B1 ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक? विच आर, क्योंकि DRS तो लाइन के होते हैं ना, DCs एंड DRS, सो प्लेन के DRS क्या होते हैं? DRS ऑफ अ प्लेन आर द DRS ऑफ नॉर्मल, विच आर DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। बात क्लियर हुई या नहीं? मजा लिया जाए इसका? ध्यान से देखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, से यस और नो? तो सिंस DRS ऑफ प्लेन 2 आर कोफिशिएंट ऑफ x a अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ y b बीटा, कोफिशिएंट ऑफ z c गामा। अब ये होंगे इस प्लेन के नॉर्मल के DRS। सो ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल के DRS मिल गए a अल्फा, b बीटा, c गामा। मींस वो जो लाइन आपको दिख रही है ना, लेट्स से दिस इज a, दिस इज m, सो DRS ऑफ लाइन AM क्या मिल जाएंगे? a अल्फा, b बीटा विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AM इज क्या मिल जाएगी इक्वेशन? बताइए। एक इक्वेशन जो कि पास हो रही है FGH से, जिसके DRS हैं a अल्फा, b बीटा, c गामा। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को तनाव है तो चिल्लाइए, किसी को कोई तनाव है तो चिल्लाइए। देखो, वीडियो छोटा करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट से कंप्रोमाइज अगर करना पड़े तो मैं ये कॉन्सेप्ट टॉक फिर बनाऊं ही ना।
मतलब मेरा क्लियर मैसेज है हमारी टीम को भी कि भाई मेरा रिदम जो है, चीज़ें मतलब केवल छोटा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं उसका कैच, उसका जो जिस्ट है वही मिस हो जाए और एज ए टीचर मेरी जो छवि है वो विलेन की छवि बन जाए, ऐसा मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो कोई भी कॉन्सेप्ट टॉक उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपको एक कंप्लीसन नज़र आएगा कि मास्टर बहुत रिफाइंड चीज़ों के साथ में एक कॉन्सेप्ट को उठा रहा है। क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़ाने के बाद ये जो गट फीलिंग है ना, ये यही कहती है। ठीक है, चलो अब आप देखिए यहां पे लाइन का इक्वेशन लिख दिया। लेट्स से दिस इज 3। सिंस द लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, since the line also passes through the point alpha beta gamma, so it will satisfy, means alpha minus f upon a alpha equals beta minus g upon b beta equals gamma minus h upon c gamma। यहां तक आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगी। अब अगर यहां पर मैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना चाहूं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक पैरामीटर ले लूंगा और उस पैरामीटर के टर्म्स में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख सकता हूं। अरे बोलो हाँ या ना। सो व्हाट यू कैन डू, अल्फा माइनस एफ अपॉन ए अल्फा को अगर आर के इक्वल लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज अल्फा विल बी एफ अपॉन 1 प्लस ए आर। करके देख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली बीटा विल बी जी अपॉन 1 प्लस बी आर एंड गामा विल बी एच अपॉन 1 प्लस सी आर। अल्फा बीटा गामा लाई किस पे कर रहा है? अरे बोलो सो ए अल्फा का मतलब एफ अपॉन 1 प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस बी जी अपॉन 1 प्लस बी आर का स्क्वायर सी एच अपॉन 1 प्लस सी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एकदम शांत हो जाइए अब, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन आर बनाते बनाते अपन खूब मज चुके हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इन आर नहीं है, दिस विल बी अ 6th डिग्री। इफ यू मैनेज द डिनोमिनेटर्स, दिस विल गिव यू अ 6th डिग्री इक्वेशन इन द वेरिएबल आर। सो दैट मीन्स, अब आप समझिए, एएम लाइन अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है उनके लिए 6 वैल्यूज ऑफ आर मिल रहे हैं। सो लेट से R1, R2, R3, R4, R5, R6 मीन्स ये जो अल्फा बीटा गामा थे, देखिए ध्यान से, अल्फा का एक वैल्यू क्या हो सकता है, सॉरी देखिए ध्यान से, आई चेंज द कलर सो दैट टू मेक इट मोर क्लियर। अल्फा में भी एफ अपॉन 1 प्लस ए आर 1, फिर यहां से मान लो इसको अल्फा 1 बोल दिया, सिमिलरली बीटा 1, सिमिलरली गामा 1, फिर अल्फा 2 एफ अपॉन 1 प्लस ए आर 2, ऐसे करके अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। मीन्स कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको? 6 पॉइंट्स। किस लाइन पर? एएम लाइन पर। और जो ए है वो A1, A2, A3, A5, A6 पॉइंट्स मिलेंगे इस सरफेस के ऊपर। विश्वास दिलाइए, एकदम चमका या नहीं, क्रिस्टल क्लियर, ये बताइए। सो कहने का मतलब, यहां से जो नॉर्मल्स पढ़ रहे होंगे वो पढ़ेंगे 6 नॉर्मल्स, और ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो ये दिख रहे हैं आपको। R1, R2 क्या है? R1, R2, R3, R5, R6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? सो पहला टारगेट जो था कि
फ्रॉम एनी पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वो तो यही फुलफिल हो चुका था, उसमें तो कोई तनाव था ही नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद हम दूसरे टारगेट पर भी जंप कर गए थे, ये भी याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको केवल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए FGH से। यू कैन राइट लाइक दिस, वेयर अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई दिस कंडीशन। So this with this can give you conditions for equation of normal. The other point which was more interesting for us, that was how many normals can be drawn from a point on some central conicoid. अब आप एलिप्सॉइड सोचकर देखिए और ये पॉइंट यहाँ इमेजिन कीजिए, देखिए यहाँ से कितने पॉइंट्स, कितने लाइंस बनाए जा सकते हैं नॉर्मल ऑन दिस एलिप्सॉइड। सो 6 नॉर्मल्स मैथमेटिकली करके दिखा दिया है। एंजॉयड और नॉट? तो ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको बोला जाता है फीट ऑफ नॉर्मल्स। क्या बोलते हैं? फीट ऑफ नॉर्मल्स। बोलिए, जब क्लास स्टार्ट किया था फीट ऑफ नॉर्मल्स की बात की थी कि नहीं? कहां गया? मैंने बोला ना, इक्वेशन ऑफ लाइन बात हो गई, नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात हो गई, फीट ऑफ नॉर्मल्स की बात हो गई। अब इन फीट्स का लोकस क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का यही मजा है दोस्त। मतलब आपको अंदर से जॉय फील होने लगेगा कि यार कितना तो आसान था, कभी कनेक्टिंग मैनर में देखा ही नहीं चीजों को। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सभी लोग विश्वास दिलाइए। तो अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो थ्रू द फीट ऑफ नॉर्मल्स आपको दिख रहा है, ये कोन देने जाएंगे आपको? कोन, इनका जो लोकस होगा वो एक सरफेस बन देगा जो कि कोन को रिप्रेजेंट करेगी। Say yes or no. If you are interested more in mathematically, see dear here. We are here not for regular classes, I have repeatedly said. Here I am trying to make your life as easy as possible. So when you talk about normals के बारे में, what is the game of normals, the basic understanding what you require from my side, that I have given you here. Now if you are more interested कि सर मैथमेटिकली क्या होगा, वो लोकस जो आप बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आ रहा है अपने को, और ऐसा लग भी रहा है कि यूपीएससी उस टाइप का सवाल पूछ भी लेगा, तो सर उसके बारे में कुछ कह दीजिए। इज इट सो? प्लीज रिप्लाई यस और नो। कहें क्या? चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो कोशिश की जाएगी उसके लिए भी, ठीक है? चलो, लेट्स हैव दैट। उसका स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है? लिखिएगा, कलर चेंज कर लेगा ना। चलिए, सो व्हाट डज इट से? क्यूबिक कर्व। अच्छा, क्यूबिक कर्व तो बता ही दिया, मतलब वो जो f अपॉन 1 प्लस ए आर है। क्यूबिक कर्व के बारे में अगर जानना हो तो f अपॉन 1 प्लस ए आर, g अपॉन 1 प्लस बी आर, h अपॉन 1 प्लस सी आर, दिस विल लाई ऑन अ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। x की जगह f अपॉन 1 प्लस ए आर, y की जगह g अपॉन 1 प्लस बी आर, और z की जगह c अपॉन 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस सी आर रख दीजिए। यू विल गेट द क्यूबिक इक्वेशन इन R। सो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक इन R, ठीक है? सो फीट ऑफ नॉर्मल्स के लिए क्यूबिक जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज फॉर दिस ओनली। द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट इज द कोन थ्रू 6 concurrent normals।
cone through six concurrent normals. बात वही है, concurrent normals means एक ही पॉइंट से normals डाले जा रहे हैं. So 3, 3, 6. Let's say this is some central conicoid, ax square plus by square plus cz square equals to 1. So इसका mathematical equation लिखेंगे. I'll explain that to you. So points की अगर हम बात करें तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. How the points looking like this. इसके बारे में तो कोई तनाव है ही नहीं अपने को. इसके बाद हमें चाहिए लोकस. ये पॉइंट हमारा m था. और यहाँ पर हमने कोई भी जो पॉइंट एक उठाया था 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स मिलेंगे, उनमें से एक हमने अल्फा बीटा गामा लिया था. सो x बाई जेड अपने पास हो गया. अब एनी लाइन थ्रू एफ जी एच क्या होगी? एनी लाइन थ्रू एफ जी एच क्या दिखाई देगी प्यारे बच्चों? बोल दो. x माइनस एफ अपॉन उसके टेंजेंट प्लेन के DRS से ये वाला पॉइंट अपने को मिल ही गया है. इसमें तो किसी को कोई तनाव होने वाला नहीं है. राइट और नॉट? फेयर. अब अपन को क्या करना है? x बाई जेड को सेटिस्फाई करा देना है. ठीक है. ऑन सेटिस्फाइंग बाई 1 in 2 वी गेट. अब अपने को जो इक्वेशन मिलेगी f अपॉन 1 प्लस ए आर माइनस एफ अपॉन ए अल्फा, दैट इज बाई अपॉन जी अपॉन 1 प्लस बी आर एक्स माइनस सॉरी बाई का वैल्यू है दैट इज. सो दैट इज बाई इज जी अपॉन 1 प्लस बी आर माइनस जी अपॉन बी बीटा. जेड इज एच अपॉन 1 प्लस सी आर. जस्ट आई एम गिविंग यू अ हिंट हियर. अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में अपने पास जो एफ जी एच हैं, अगर हम इनका लोकस में LMN लेकर चलें किसी जनरल इक्वेशन के लिए. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, क्योंकि ए अल्फा तो टेंजेंट वाले पे जाएगा. लेट्स से दिस इज m, दिस इज m, दिस इज n. अब एलिमिनेट कर दें अगर हम LMN को, क्योंकि वो तो हमने अपनी तरफ से लिए हैं. एलिमिनेटिंग LMN टू गेट लोकस. सो द मैथमेटिकल इक्वेशन विच यू विल गेट दैट विल रिप्रेजेंट अ कोन हियर. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दिस कॉन्सेप्ट टॉक, मतलब अगर हम खींचेंगे उसको तो खींचता चला जाएगा, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता है. लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट टॉक में हम आपको कॉन्सेप्ट डिकोड करके दे जाए, भले ही किसको ये लगे कि सर पूरे नहीं बताते हैं, आप मुझसे नाराज हो जाए. तो मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि कॉन्सेप्ट टॉक को यूज कीजिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, डू लेट अस नो. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक विल बी बेस्ड ऑन दैट एज वेल. So here I have given you the glimpses, here I have told you the path to follow, path to proceed. Now it's your job to get the conclusion out of that mathematically, right? So in today's talk we have tried to go through normals. ठीक है, normals की story, equation of normal, right? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट. अच्छा, पीछे वाले में FGH वाले में अगर कोई डाउट रहेगा देन डू लेट मी नो. जो एक्स वाई जेड से सेटिस्फाई कराए वो ए अल्फा बी बीटा सी गामा इसलिए हटाया था क्योंकि मुझे FGH वाले से लोकस निकालना था, इसलिए मैंने एक जनरल इक्वेशन LMN में कंसिडर कर लिया. Still if you have doubt you can come across, you can suggest कि सर come up with more explanation, I'll definitely come. ये हो गया 6 normals. ठीक है, फिर locus of concurrent normals. So this was the story which we tried to connect here in this particular concept talk. Now if you have any suggestion you can come up with this. With my experience what I will suggest you guys is formula type की study is okay, but
never it should be on the ignorance of conceptual clarity. Believe me, dear fellows, it is very much required for you. I am saying it is very much required for you. So here in the concept talk, not only mathematics we are talking about. See, as persons who know me, they know that I am always open for any discussion for UPSC aspirants who are preparing logically for this exam. And like mainly I am always tilted towards, आप कह सकते हैं, I am like much more fascinated UPSC aspirants with science optionals. Because वो जो mindset है, that needs this kind of thinking which we have been doing for this concept talk. Because many of you have been enjoying this and many of you have felt this कि नहीं यार, इसके थ्रू भी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है. Coaching classes and batch, regular batches, those are altogether a different story. But here, sir has been doing a wonderful job by decoding the concept for us. So I hope you all are enjoying. So don't forget to appreciate each other. Keep learning, keep smiling, dear students. Don't forget to ask what should be the next. Good luck.